Hello student, welcome to Target IAS. Today we are going to start second chapter of renewable energy, which is solar radiation. Content of today's chapter will be solar energy, solar radiation, spectral distribution, terminology used, definition of important angles and then instrument used. सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि सोलार एनर्जी क्या होता है। तो देखो, जो भी सोलार एनर्जी है, अभी हम लोगों ने इससे लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि दैट इज द प्रोमिसिंग सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि जो द पावर ऑफ सन है दैट इज इंटरसेप्टेड बाय अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 1.8 into 10 to the power 11 megawatt, which is actually sufficient enough to cater the need of world power consumption. But the problem is that this energy is available in dilute form, and social radiation flux rarely exceed 1 kilowatt per meter square. So that means solar radiation flux की जो value होती है वो 1 kilowatt per meter square होती है, 1 kilowatt per meter square होती है, even in hottest region of earth. टोटल रेडिएशन ओवर अ डे रीचेस टू 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें लार्जर करेक्टर एरिया की जरूरत होती है, एंड इफ अगर हमें लार्जर करेक्टर एरिया की जरूरत है टू फुलफिल द नीड ऑफ इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड एप्लीकेशन, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि हमारी जो इनिशियल कॉस्ट होती है इसकी वो ज्यादा हो जाती है। If now next topic is methods used for utilizing of solar energy. So there are two types of method, direct method and indirect method. Direct method दो तरीके के होते हैं, एक होता है thermal and एक photovoltaic. So thermal is like heating of thermal method is like heating of water or heating of air or drying of commodities, while voltaic matlab if we want to convert this energy to electricity, then we will use photovoltaic cells. Now coming to indirect method there are these many indirect methods: hydropower, wind, biomass, wave energy, ocean thermal energy conversion and then marine currents. अभी इसके आगे अगर हमें सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ना है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि सोलर एनर्जी कैसे रिसीव हो रही है, किस फॉर्म में रिसीव हो रही है और वो कैसे एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो देखो, उसके लिए हम पढ़ते हैं सोलर रेडिएशन क्या होता है। As we already know that the diameter of sun is 1.39 into 10 to the power 6 किलोमीटर, and then उसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होती है which is called nuclear fusion, जिसकी वजह से the temperature at the core of the sun is almost 10 to the power 7 Kelvin. Then the temperature at the outer passive layer of sun is 5880 Kelvin. This is very important. It is 5880 Kelvin, and it becomes a source of radiation. Now, the fluctuation at the surface temperature is not high, hence this radiation which is emitting, it is actually or relatively continuous spectral distribution. Okay, so solar radiation is what? Solar radiation is the energy emitted by the sun in the form of electromagnetic waves. ठीक है, सोलार रेडिएशन क्या है? सोलार रेडिएशन वो एनर्जी है जो सन से मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सोलर रेडिएशन बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम, और यहाँ पर जो सोलार एमिशन है या जो सोलार रेंज है वो आती है, वो यहाँ से शुरू होती है अल्ट्रा वायलेट से और यहाँ पर खत्म होती है। ठीक है, ये जो वेवलेंथ कवर करती है वो वेवलेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.5 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर. So which clearly means if the range is 0.3 micrometer to 2.5 micrometer, so it clearly means that solar radiation is covering entire range of visible light and some part of UV light and some part of infrared radiation. ये अल्ट्रावायलेट का कुछ पार्ट लेगा, यहाँ से अगर यहाँ तक है तो ये अल्ट्रावायलेट का कुछ पार्ट लेगा, पूरा पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट विजिबल वाला है तो इसका मतलब विजिबल का तो पूरा पार्ट लेगा और कुछ पार्ट ये इंफ्रारेड का लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इट इज कवरिंग entire range of visible radiation while some part of ultraviolet radiation and infrared radiation. Solar flux reaches Earth's surface at the maximum flux density of 1 megawatt per meter square and in the wavelength of 0.3 to 2.5. This is known as short radiation. Okay.
नाउ शॉर्ट रेडिएशन क्वांटिफिकेशन क्या है? तो देखो सबसे पहले तो इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। आई इसमें जो है दैट स्टैंड्स फॉर एनर्जी फ्लक्स। सो द सोलार कांस्टेंट S or C stands for solar constant. So the standard value of solar constant is 1367 watt per meter square. Actually, initially it was adopted as 1353 watt per meter square in 1971, but then after some few measurement or based on some subsequent measurement, the finally decided value is 1367 watt per meter square. Now the thing is, since orbit of Earth on which it revolves around the sun is elliptical, जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इट वेरीज. मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, दिस मीन डिस्टेंस इज वेरीइंग. और अगर ये वेरी करता है तो फिर क्या होता है, ये सोलार कांस्टेंट आईएससी का भी वैल्यू वेरी करता है. और अगर आईएससी का वैल्यू वेरी करता है तो नया वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से. फॉर्मूला क्या है? 1 plus 0.033 cos 360 n by 365, where n is equals to number of days. 1 लेंगे from 1st of January से. जो भी ये वैल्यू आएगी इस फॉर्मूला से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू में 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर में, और जो भी फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी योर न्यू वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. तो देखो ये एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस में वेवलेंथ है, वाई एक्सिस में सोलर स्पेक्ट्रल रेडिएशन है माइक्रोमीटर. तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि द रेंज, जो रेंज है दैट इज 0.3 to 2.5 माइक्रोमीटर. तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा है ये जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0.3 और यहाँ पर ये पीक पे जा रहा है. ये पीक पे जा रहा है. दिस पीक वैल्यू इज ऑलमोस्ट this peak value is almost 0.49 and then it is decreasing till it reaches to 0. तो जैसे कि आप देख रहे हो कि the range is 0.3 to 2.5 माइक्रोमीटर. और अगर हम इसका एनालिसिस करें तो we can see that spectral extraterrestrial radiation flux it reaches at peak for wavelength of 0.49 micrometer. Extraterrestrial radiation flux increases rapidly with increase in wavelength from 0.3 to 0.49, right? 0.49 तक तो वो ऊपर जा रहा है, उसके बाद वो नीचे हो रहा है. That means then it is decreasing to 0. Okay, 99% of sun's radiation are obtained up to a wavelength of 4 micrometer and 96% at wavelength of 2.5 micrometer. Also, the area under this curve it gives average extraterrestrial radiation flux, जिसका वैल्यू हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर. दिस रेडिएशन फ्लक्स जो है that actually follows black body radiation. Hence, all the laws of black body radiation are applicable on solar radiation. तो ब्लैक बॉडी के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? सबसे पहला कि इट एब्जॉर्ब्स ऑल इंसिडेंट रेडिएशन. इस पे जितने भी रेडिएशन इंसिडेंट होंगे ये सबको एब्जॉर्ब कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ वेवलेंथ एंड डायरेक्शन. सेकेंड क्या है? इट इज अ परफेक्ट एमिटर. दैट मीन्स फॉर अ गिवन टेम्परेचर एंड वेवलेंथ नो सरफेस कैन एमिट मोर एनर्जी देन ब्लैक बॉडी. इट कैन एमिट परफेक्टली. Third is depends upon temperature and wavelength. It depends, this black body is a function of wavelength and temperature, but it is independent of direction. इसका क्या मतलब हुआ? If it is independent of direction, then it is called diffuse emitter, because that means that it can have any direction or all the direction. Okay. Now we will see a few laws. So सबसे पहले Planck law. It is the mother law or you can say the main law. The equation of Planck's law is I lambda is equals to 2 pi sc square upon lambda की power 5 exponential sc upon pi kt minus 1, where I lambda is equals to solar intensity, h is equals to universal Planck constant, the value of h is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. K is equals to universal Boltzmann constant is equals to 1.381 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin. C is equals to speed of light is equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Lambda is equals to wavelength and T is equals to absolute temperature. Next is Wien's displacement law. As per Wien's displacement, the lambda value, that means the wavelength, is indirectly proportional to mean temperature.
सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी, और हमें पता है लैम्डा मैक्सिमम का वैल्यू कितना था 0.49, हमें टी का वैल्यू भी पता है, टी का वैल्यू है 5880, अगर हम दोनों वैल्यू रखेंगे तो फाइनल आंसर विल कम 2898. So the lambda max into t is equals to constant, and the value of this constant is 2898. Second is Stephen Boltzmann law. Stephen Boltzmann law क्या है? EB, which is known as total emissive power of a black body. B stands for black body. So EB is directly proportional to mean absolute temperature की power 4. ओके और अगर हम वो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4. सो दीज आर ऑल ब्लैक बॉडी कैरेक्टरिस्टिक. ये आपने ऑलरेडी रेडिएशन हीट ट्रांसफर के रेडिएशन चैप्टर में पढ़ा होगा. इट्स जस्ट अ रिविजन. नेक्स्ट इज टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड इन सोलर रेडिएशन. तो देखो ये टर्मिनोलॉजी क्या है. सबसे पहले डायरेक्ट रेडिएशन. तो इसका मतलब ये है कि कोई जो भी रेडिएशन अर्थ के सरफेस में डायरेक्टली रिसीव हो रही है इन लाइन विद सन, उसे बोलते हैं डायरेक्ट रेडिएशन. इसको डिनोट करते हैं IB से. और IB से क्यों डिनोट करते हैं? बिकॉज डायरेक्ट रेडिएशन इज ऑल्सो नोन एज बीम रेडिएशन. सो B स्टैंड फॉर बीम. नेक्स्ट इज डिफ्यूज रेडिएशन. तो इसका मतलब ये है कि अर्थ के सरफेस में जो भी रेडिएशन रिसीव हो रही है आफ्टर गेटिंग स्कैटर्ड बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की वजह से जो स्कैटरिंग हुई है उसके बाद जो अर्थ के सरफेस में रेडिएशन रिसीव हो रही है उसे बोलते हैं डिफ्यूज रेडिएशन. इसको ID से डिनोट करते हैं. और ऑलवेज रिमेंबर इवन ऑन द क्लियर स्काई डे सम पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन इज डिफ्यूज रेडिएशन. Now coming to global radiation, it is a summation of above two, which means that it is a sum of direct radiation and diffuse radiation. Hence Ig is equals to IB plus ID. Next is irradiance. So it is the solar irradiance is the rate at which radiant energy is incident on unit area of surface. जिस भी रेट से जो भी एनर्जी है वो किसी यूनिट एरिया सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है उसे बोलते हैं इररेडियंस. इंसोलेशन क्या होता है? द इंसिडेंट सोलर एनर्जी रेडिएशन इफ मेजर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड इंसोलेशन. मतलब दिन में या किसी भी घंटे में किसी भी आवर में अगर हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं सोलर रेडिएशन को जितना इंसिडेंट हुआ है तो दैट इज नोन एज इंसोलेशन. सो फॉर एग्जांपल इफ इट इज मेजर्ड फॉर अ होल डे देन इट इज एक्सप्रेस्ड इन वॉट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे. Next is air mass. So air mass is a measure of path length of radiation through the atmosphere. जिस भी पाथ से रेडिएशन हो रहा है उस पाथ का जो लेंथ है दैट इज एयर मास. तो हम लोग क्या करते हैं इसमें एक एजम्पशन करते हैं कि दैट द वर्टिकल पाथ ऑफ सोलर रेडिएशन इज यूनिटी. तो इसके बाद इस एयर मास को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन एयर मास रेशियो विच इज नोन एज AMR, विच इज डिफाइंड एज मास ऑफ द एटमॉस्फेयर थ्रू विच बीम रेडिएशन पासेस थ्रू मास इट वुड पास इफ द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड. ठीक है. इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज AMR इज इक्वल्स टू 1/cos θz, वेयर θz इज जेनिथ एंगल, जो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जेनिथ एंगल क्या होता है. सो ये फॉर्मूला याद रखना है हमें. AMR एयर मास रेशियो इज इक्वल्स टू 1/cos θz, वेयर θz इज जेनिथ एंगल. The next is definition of important angle in solar radiation, effect of geometry of earth and sun. तो देखो ये see first of all we have to understand कि if there is any location on the surface of earth it is always identified in terms of longitude and latitude, है ना. तो these are the main two important angle, longitude and latitude. Because of that we can do the calculation or we can define the location on anywhere on the surface of earth. यहाँ पर ये जो N और S है that this N this is north pole and this S this represents south pole. So it is northern pole, it is southern pole, and this NS is the axis along which this earth is rotating in 24 hours. इसी axis के along earth जो है वो rotate कर रहा है for 24 hours. ठीक है. Now we'll come to
फर्स्ट लैटिट्यूड एंगल जिसे हम फाई से डिनोट कर रहे हैं, ये दिस इज लैटिट्यूड एंगल। तो ये लैटिट्यूड एंगल क्या हो गया, अगर हम किसी पी पॉइंट के लिए कैलकुलेट करें, इसके लिए अगर हम लैटिट्यूड एंगल कैलकुलेट करें तो लैटिट्यूड ऑफ लोकेशन पी इज द एंगल मेड बाय रेडियल लाइन ज्वाइनिंग द लोकेशन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब इस पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे उसके सेंटर की तरफ with the projection of line on equilateral plane। और equilateral plane ये है, इस प्लेन पे जो लाइन है उससे इसके सेंटर की तरफ जाके जो एंगल बनेगा that is known as latitude angle, that is known as latitude angle। अगर इसको हम पॉजिटिव लेंगे if we are talking about northern hemisphere, and इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे if we are talking about southern hemisphere। ठीक है। सेकेंड इज लॉन्गिट्यूड एंगल जिसको हम साई से डिनोट कर रहे हैं। तो देखो इट इज मेजर्ड पॉजिटिव ईस्टवर्ड फ्रॉम ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच इंग्लैंड इट इज एक्सेप्टेड एज ए स्टैंडर्ड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटीज, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन से हम लोग मेजर करेंगे। सो द एंगल बिटवीन द प्रोजेक्शन लाइन ऑफ एनी पॉइंट ऑन इक्विलेटरल प्लेन, यानी दिस इज द इक्विलेटरल प्लेन और वहां से टू द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हैविंग सेम लैटिट्यूड एज द ग्रीनविच। तो इफ दिस इज द ग्रीनविच लाइन तो उनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज लॉन्गिट्यूड एंगल साई। ओके। Next is declination angle. So declination angle is the angle made by line joining the center of earth sun and the earth with the projection of its line on the equilateral plane। तो देखो ये अगर sun का सेंटर है और ये अगर अर्थ का है तो इनके यहाँ से इसका इक्विलेटरल प्लेन में, ये अगर एक इक्विलेटरल प्लेन है वहां से जो एंगल बनता है उसको डेल्टा, जिसको हम डेक्लिनेशन एंगल बोल रहे हैं। ठीक है। अभी क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये बोला था कि सिंस दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इट इज वेरिंग टाइम टू टाइम। तो इसका मतलब ये है कि डेक्लिनेशन एंगल भी चेंज होगा। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, हम लोग जब पहले पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सोलार कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। फॉर द सेम रीजन डेक्लिनेशन एंगल भी चेंज होता जाएगा। तो उसके लिए एक कूपर रिलेशनशिप है इस एंगल को निकालने के लिए, विच इज डेल्टा इज इक्वल टू 23.45 साइन 360/365 284 प्लस n, where n is equals to number of days counted 1 on 1st of January. We'll take this positive, that is declination towards north, and if we are taking is negative, that is declination towards south. अभी एक चीज देखो, there are few things. यहाँ पर जो 23.45 लिया है, ये 23.45 जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, this we are taking on 21st of June। मतलब हम ये वैल्यू प्लस 23.45 तब लेंगे जब 21st ऑफ जून होगा। वाई? बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट डे। यही वैल्यू को हम माइनस 23.45 लेंगे, ये देखो यहाँ पर, कब? जब बिकॉज ऑफ 21st December, बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डे, and we are going to take this value 0 on September 21st and March 21st. This is September 21st and March 21st को डेक्लिनेशन का वैल्यू जो होगा वो 0 लेंगे। ठीक है। Now next topic is R angle. So the earth revolves about its axis and complete one revolution in 24 hours, right? अर्थ क्या होती है, वो अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करती रहती है और एक रिवोल्यूशन लेती है 24 आवर्स में। इसका मतलब क्या हो गया कि 15 डिग्री पर आवर, है ना। अगर हम 360 डिग्री को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 डिग्री पर आवर। सो द आवर एंगल फॉर एनी पर्टिकुलर पोजिशन P इज द एंगल थ्रू विच अर्थ रोटेटेड सिंस सोलर नून, through which Earth has rotated since solar noon. The formula is that omega is equals to 15 T solar minus 12 H, or it is equals to 15 T zone minus 12 H plus omega equivalent psi minus psi zone, where T solar is equals to this. T solar is local solar time, T zone is local civil time, psi zone is the longitude where sun is overhead. Again, this value will be positive for evening time and it will be negative for morning. Next is local apparent time, that is LAT. It is used for calculation of R angle.
So the formula for this is LAT, that is local apparent time, is equals to ST. ST is standard time plus minus 4 ST longitude minus longitude of location plus omega equivalent. ठीक है, it is taken negative for eastern hemisphere and it is taken positive for western hemisphere. Now coming to next topic, which is important angles in terms of collector and solar beam. In terms of collector and solar beam. So देखो ये डायग्राम. सो ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज अ टिल्टेड प्लेन. ये जो यहाँ पर प्लेन है, दिस इज अ टिल्टेड प्लेन. यहाँ पर से सन जो रेडिएशन है दैट वो इंसिडेंट हो रहा है. ये प्लेन का नॉर्मल है, ये नॉर्मल टू टिल्टेड प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है. ठीक है, अभी देखो जो पहला एंगल है वो क्या है, स्लोप. तो देखो एंगल बिटवीन कलेक्टर प्लेट एंड हॉरिजॉन्टल. ठीक है, एंगल बिटवीन कलेक्टर प्लेट एंड दिस इज आवर प्लेट विच इज टिल्टेड प्लेट. और इसके और हॉरिजॉन्टल के बीच में, हॉरिजॉन्टल क्या है, ये इसके बीच में जो एंगल है दैट इज नोन एज स्लोप. दैट इज नोन एज स्लोप. So the for surface facing towards the equator, the value will be 0 to 90, and the for surface facing away from the equator, the value will be 90 to 180. Next angle is surface azimuth angle. Surface azimuth angle. तो इसमें देखो surface azimuth angle क्या है, इसको हम गामा से डिनोट करते हैं, दिस वैल्यू. तो देखो ये क्या है, इट इज द एंगल मेड बाय प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द टिल्टेड प्लेन. प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल है. ठीक है, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, ये. ठीक है, तो इसके प्रोजेक्शन से विद उसके साथ लोकल लॉन्गिट्यूड मेरिडियन, ये जो लाइन है ये लोकल लॉन्गिट्यूड मेरिडियन की है, इनके बीच का जो एंगल होगा उसे बोलते हैं सरफेस अजीमुथ एंगल. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंगल जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, सन रेज जहां से इंसिडेंट हो रही है वो और नॉर्मल ऑफ टिल्टेड प्लेन के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं. इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं. फिर से सुनो, पहला एंगल क्या है, स्लोप. स्लोप क्या होता है, एंगल बिटवीन कलेक्टेड प्लेन. ये जो है ये कलेक्टेड प्लेन है और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसके बीच का जो एंगल है दैट इज स्लोप, बीटा. देन सेकेंड एंगल है सरफेस एजीमुथ एंगल, जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं. तो नॉर्मल टू टिल्टेड प्लेन का जो प्रोजेक्शन है, ये है नॉर्मल टू टिल्टेड प्लेन. इस प्लेन का जो प्रोजेक्शन है विच इज दिस लाइन, इसका और लोकल लॉन्गिट्यूड मेरिडियन यानी कि ये लाइन के बीच का जो एंगल होता है दैट इज नोन एज गामा, सरफेस एजीमुथ एंगल. एंड थर्ड इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं. इट इज द एंगल बिटवीन सोलार बीम रेडिएशन एंड नॉर्मल टू द टिल्टेड प्लेन. नॉर्मल टू द टिल्टेड प्लेन. Now next angle is solar zenith angle which is denoted as theta z. ये यहाँ पर देख सकते हो, ये थीटा जेड. ये किसके बीच में है, एक तो वो जो सन रेडिएशन हो रहा है ना, जो सोलर बीम आ रही है वो, और दूसरा क्या है, नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन. क्लियर दिख रहा है, यहाँ से सन इंसिडेंस हो रहा है और यहाँ से दिस प्लेन इज नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन. सो इट इज द एंगल बिटवीन सोलर बीम एंड नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन. नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन. नेक्स्ट इज सोलर अल्टीट्यूड, दिस वन. ठीक है, ए अल्फा ए, सोलर एल्टीट्यूड इज अल्फा ए. क्लियर है. अगेन सोलर एंगल जो है यानी कि सोलर जो बीम आ रही है वो, उसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, राइट. सो हॉरिजॉन्टल से उसका जो एंगल है दैट इज नोन एज अल्फा ए. देन लास्ट है सोलर एजीमुथ एंगल, दैट इज दिस वाला. सो इसका मतलब क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूड मेरिडियन के बीच में जो एंगल है दैट इज नोन एज गामा एस, सोलर एजीमुथ एंगल. ठीक है, तो देखो सरफेस एजीमुथ एंगल गामा क्या था, एंगल मेड बाय प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द टिल्टेड प्लेन विद लोकल लॉन्गिट्यूड मेरिडियन. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, एंगल बिटवीन सोलर बीम एंड नॉर्मल टू टिल्टेड बीम. सोलर जेनिथ एंगल क्या था, एंगल बिटवीन सोलर बीम एंड नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन. सोलर एल्टीट्यूड क्या था, कॉम्प्लीमेंट टू जेनिथ एंगल, दैट इज एंगल मेड बाय सोलर बीम विद हॉरिजॉन्टल. अल्फा ए का अगर हम कभी भी वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा जेड. देन सोलर एजीमुथ एंगल क्या है, एंगल बिटवीन प्रोजेक्शन ऑफ सोलर बीम ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड लॉन्गिट्यूड मेरिडियन. नोट, इंसिडेंस एंगल एंड जेनिथ एंगल आर नॉट यूजुअली इन सेम प्लेस.
are not, sorry, it is not place, it should be plane. ये प्लेस नहीं होगा, ये गलत लिखा है, ये होगा प्लेन, इट शुड बी प्लेन. सो इंसिडेंस एंगल और जेनिथ एंगल जो है वो सेम प्लेन में मोस्टली नहीं होते. एंड फॉर हॉरिजॉन्टल कलेक्टर इंसिडेंस एंगल्स आर सेम. इंसिडेंस एंगल यानी जितने भी थीटा एंगल होते हैं ये सारे सेम होते हैं. ठीक है. Now the next and last topic is instrument which are used for measuring solar radiation and sun sign. First is pyranometer. So this pyranometer is used to measure global solar radiation. Global solar radiation. It can also measure diffused radiation with additional attachment known as shading ring. This is very important. Shading ring के साथ अगर हम इसको अटैच कर दें तो हम diffused radiation भी कैलकुलेट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं. This instrument generally measures solar radiation in the wavelength of 0.13 to 3 micrometer. 0.13 to 3 micrometer. Basic component इसमें क्या क्या होते हैं? Detector और sensor होता है. This is protected by glass dome. Then instrument body with adjustable screws, spirit level and desiccant chamber. Radiation shield to protect the instrument case. And then electrical connector for output signal. Next is pyrheliometer. It is used to measure direct or beam radiation. It is used to measure direct or beam radiation. And sun tracking mechanism is required. Next है Campbell-Stokes sunshine recorder. It is used to measure number of insolation hours. And for precise measurement, this instrument is installed several meter above the ground. कुछ मीटर above the ground इसको install किया जाता है. Last is albedometer. This measures both global radiation and reflected radiation. And again, for precise measurement, this instrument is installed several meter above the ground. इसके लिए भी अगर हमें precisely चाहिए कि ये instrument काम करे, तो हमें इसके लिए इसको we have to install it several meter above the ground. Now इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ previous year questions. तो पहला है a surface has high absorption for short wave radiation and low emittance for of long wave radiation. This is called what? हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने ये पढ़ा है. This is called selective. Okay. This if there is any surface which is having high absorption for short wavelengths and low emittance for long wavelength, then it is called selective. This is called selective. Next is the angle. Next is the angle through which Earth must turn to bring the meridian of point directly in line with sun rays. Directly in line with sun rays is known as हम लोगों ने ये सारे डेफिनेशन पढ़े हैं. ये सारे के एल्टीट्यूड एंगल क्या होता है, आर एंगल क्या होता है, सोलर एजिमुथ एंगल क्या होता है और जेनिथ एंगल क्या होता है. सो द एंगल थ्रू विच अर्थ मस्ट टर्न टू ब्रिंग द मेरिडियन पॉइंट directly in line with sun rays is our angle. The correct answer is our angle. इसका correct answer क्या था? Selective. Next, this question has been asked in 2019, which is a good approximation of measured solar spectrum is made of. A good approximation of measured solar spectrum is made of Planck's energy distribution. हमने बोला भी था कि Planck's law जो होता है वो मदर लॉ होता है, सारे के सारे लॉज उसी से ही डिफाइन होते हैं. So the Planck energy distribution is the way of measuring solar spectrum. Last है, this question has been asked in 2017, which is statement 1 is pyranometer is used to measure diffuse solar radiation by blocking the direct radiation with a shadow band, while pyrheliometer is used to measure diffuse radiation. पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, अभी हम लोगों ने पढ़ा इट इज यूज टू मेजर डिफ्यूज सोलर रेडिएशन बाय ब्लॉकिंग डायरेक्ट एंड करेक्ट है. सेकंड है pyrheliometer is used to measure diffuse radiation. It is wrong. Why? It is not, because pyrheliometer जो होता है वो सिर्फ डायरेक्ट रेडिएशन, डिफ्यूज नहीं, डिफ्यूज गलत वर्ड है, डायरेक्ट रेडिएशन को कैलकुलेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. दैट मीन्स ये थर्ड इज द करेक्ट आंसर. Thank you everyone.
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सोलार थर्मल एनर्जी कलेक्टर, जिसमें हम लोग फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।